Hey guys, very good afternoon to all of. अब मैं भी थोड़ा sophisticated बन जाता हूँ. Now, very good afternoon to all of you. Welcome to the Class of Life. It's the first episode of Class of Life. The first, let's first understand what is Class of Life at Genesis, why we are doing it. क्या ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं लाइफ में क्लास ऑफ लाइफ? ओके, आई टेक यू बैक टू 2020 जब कोविड फर्स्ट टाइम हिट हुआ था. तो दैट वाज द फर्स्ट सेशन जब मैंने ऑफिशियली टीचिंग को छोड़ा था. तो उस टाइम पे द रीजन वाज वेरी क्लियर दैट आई फेल्ट दैट आई कैन डू बेटर मेंटरिंग देन जस्ट टीच फिजिक्स. तो उसमें उस टाइम पे मैंने एक बैच के साथ 12th का जो आउटगोइंग बैच था उसके साथ हमने क्लास ऑफ लाइफ का इनिशिएटिव लिया एंड द इनिशिएटिव टर्न्ड आउट टू बी ब्रिलियंट. तो उस टाइम पे वी यूज्ड टू हैव दिस, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था. तो इट वाज वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे रात को 8 से 9 वी यूज्ड टू हैव दिस क्लास ऑफ लाइफ. उसके बाद 3-4 साल गुजर गए, क्लास ऑफ लाइफ नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स, बिजी स्केड्यूल एंड ऑल दैट स्टफ. बट आई थॉट कि we need to get things back on track. I need to get things back on track for my own vision and for the real vision of Genesis. That's why the class of life is back. Now, what do we study in class of life, and why do we do this class of life? So let me first answer the why for all of you. हम करते क्यों हैं? हम क्यों करेंगे? I'm keeping my fingers crossed, बच्चे. If the higher power allows me, that will then we'll at least have 1 to 2 sessions per month for this class of life. We'll choose a convenient date. I'll keep on regularly being in touch with you to see when can be the suitable class of lifetime can be. हो सकता है संडे ही चूज करें, हो सकता है वेडनेसडे 8 से 9 का भी चूज कर सकते हैं. We'll vote and answer probably in normal classrooms. Having said that, why do we do class of life? नाम में ही आंसर है, class of life. This is not about chemistry, this is not about English, this is not about mathematics. This is about the life. मेरी एक विजन रही है, एक एक कोशिश रही है दैट जो बच्चे जेनेसिस में पढ़ते हैं, जिनके साथ आई कैन मतलब जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हम सिर्फ एकेडमिक्स के लिए ट्रेन ना करें, उनको माइंडसेट के लिए ट्रेन करें. एक वर्ड जो भी बच्चे मुझसे किसी ना किसी पॉइंट पे पढ़े हैं, सुना है मुझे कभी बोलते हुए स्कूल्स में, वर्कशॉप्स में, आप अपने नोट्स भी बना सकते हो. और मैं आपको एक वर्कशीट भी दूंगा. आज जो क्लास होगी उसकी एक आपको असाइनमेंट भी मिलेगी. असाइनमेंट इज रॉन्ग वर्ड, नोट्स भी मिलेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ जाएंगे. तो यू कैन सेव क्लास ऑफ लाइफ एपिसोड 1 के नाम से एंड विल कीप ऑन सेंडिंग यू मोर नोट्स हर क्लास के बाद. नाउ कमिंग बैक टू, सो मेरा एक बहुत सिंपल सा विजन है दैट बच्चा सिर्फ अकेडमिक्स के लिए ट्रेन नहीं होना चाहिए. बिकॉज आई एम सो सॉरी टू पुट इट दिस वे, पढ़ाइयों से, नंबरों से चीज़ें आसान जरूर हो जाती हैं, बट if you want to win in life, there's much deeper things which we have to understand. So my vision is that in this class of life, on behalf of the Genesis vision, I can actually teach you about certain things, not giving you any kind of a ज्ञान. मैं हमेशा बोलता हूँ ज्ञान की जरूरत नहीं है आज की डेट में, especially to today's generation, because ज्ञान हर जगह मिल रहा है. Instagram, YouTube Shorts, whatever it is, you will get a lot of motivation. That is irrelevant. I'll share what I have learned in all these 14-15 years of building Genesis. The best part about building it, the worst part about building it, lessons learned from so many of having mentored more than 10,000 students all across. क्या सीखा, उनसे क्या सीखा, क्या बच्चे कामयाब हुए, क्या नहीं कामयाब हो पाए, कौन आज स्ट्रगल कर रहे हैं प्रेजेंट डेट में, पुराने बच्चे कौन बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो उस पैटर्न के बेसिस पे आई जस्ट शेयर व्हाट आई हैव लर्नड. Again, this is not a gyan, so we'll try to keep it as interactive as I can be. But for interaction to happen, discipline is very important since it is an online class. Okay, so maskari nahi chalegi. It's an optional class, so I'm not going to teach you anything about science, chemistry, science, whatever it is, science, maths, English. So in case you want to leave the session right now, this is the best time, because एक बार अटेंडेंस होगी, मैंने चेक कर ली पढ़ाते वक्त, तो उसके बाद छोड़ोगे तो मैं क्लास में आके पकड़ लूंगा. ठीक है? Okay, on a serious note, guys. So this is what class of life is. Why I have told you. What is simple. एक ही एजेंडा है, आपके माइंडसेट को पॉलिश करना. क्यों? बिकॉज आपको चैंपियन बनते हुए देखना चाहता हूँ. क्यों? बिकॉज आई थिंक दैट इज माई लाइफ पर्पस. एवरी वन ऑफ अस हैज लाइफ पर्पस. जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको अपना लाइफ पर्पस मिलेगा.
मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ, एज अ फ्रेंड आज बोल रहा हूँ, शायद पहली बार बोल रहा हूँ, मेरा लाइफ पर्पस जेनेसिस नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग सुन लगने लगे, जेनेसिस इज नॉट माई लाइफ पर्पस, इट्स वेरी, इट्स अ वे टू अचीव दैट लाइफ पर्पस. Life purpose is actually to impart simple wisdom to your parents and to you, to help you make better decisions and be a champion, not just in IITs, not just in NEET, not just in board exams, in life. So let's start with this. So I hope आप सब मेरे साथ हो, आप सब मेरे साथ हो. Awesome, thank you so much. I can see the heads nodding. So let me tell you a story. Let's start with the story. Day one, I'm seeing few of the expressions, curious expressions. एक एक बंदा चाबी ढूंढ रहा होता है अपनी, एक पोल, बिजली का, सॉरी, वो जो लाइट का पोल होता है सड़क पे, अंधेरा होता है, रात को 8-9 बजे की बात है, एक बंदा एक पोल के नीचे कुछ ढूंढ रहा होता है, बेसिकली कुछ ढूंढ रहा होता है, ठीक है, और बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहा होता है. सो जो भी उसको पास, नियर बाय पासर बाय उसको पास करते हैं, उससे पूछते हैं भाई क्या ढूंढ रहा है, इतनी शिद्दत से क्या ढूंढ रहा है, क्या गुम गया तेरा. तो वो कहता है कि भाई मेरी चाबी नहीं मिल रही. तो उसके साथ, अगर हम रूटीन में भी ऐसे देखें तो कुछ लोग, मैक्सिमम लोग चले जाते हैं कि ढूंढ ले भाई, ढूंढ ले, यहाँ ढूंढ ले, यहाँ ढूंढ ले, ज्ञान दे के चले जाते हैं. बट 3-4 लोग ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं, एंड दे स्टार्ट हेल्पिंग हिम सर्च द की. आधा पौना घंटा ढूंढते रहते, चाबी पोल के नीचे, लाइट पूरी है, रोशनी पूरी है, खंबे की वो जो स्ट्रीट लाइट होगी, चाबी नहीं मिलती. तो वन ऑफ देम क्यूरियसली आस्क्ड कि भाई एक बात बता, ये चाबी यहीं घूमी थी. तो दिस गाय सेड कि नहीं यार, घूमी मेरे घर पे थी, बट मैं ढूंढ यहाँ रहा हूँ बिकॉज यहाँ लाइट ज्यादा है. This is what we all have been doing. हम चीजों को वहां ढूंढते हैं, इस अजम्पशन में, इस बिलीफ में, दैट वहां रोशनी ज्यादा है, समवन विल हेल्प अस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. बट द रियल आंसर्स lie within our own selves. So in today's first interactive session in the class of life, एक ही चीज सिखाऊंगा, सिंपल. We have to take, this is today's session theme. We have to take 100%, I repeat, 100% responsibility of our lives in every sphere, if we actually want to be a champion. और ये सबसे मुश्किल है. Think about it. Why it is difficult is, तो we have to, what did I say? मैंने कहा कि यार हमें अपनी लाइफ की हर चीज की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. एज अ स्टूडेंट हु इज प्रॉब्ली, अब इसमें वी हैव अ मिक्स एज ग्रुप, कोई 8 का बच्चा भी है, कोई 12th का बच्चा भी है, जितने भी जेनेसिस में अक्रॉस बैचेस में बच्चे हैं. तो आपकी स्टूडेंट लाइफ के चैलेंजेस बहुत जेन्युइन होंगे, आई एम श्योर. एंड आई बिलीव दैट कुछ चीज़ों में ऑब्वियसली योर डिपेंडेंस, मेरे बच्चे, विल बी ऑन योर पेरेंट्स फॉर श्योर, डेफिनेटली कुछ चीज़ों में अभी, बिकॉज यू आर नॉट एट दैट स्टेज वेयर यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग. बट अगेन आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव बच्चे दैट देर आर 90% ऑफ द थिंग्स एट दिस एज ऑल्सो, जहाँ पे आप लोग 100% अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो. व्हेन आई से 100% का मतलब क्या है, आई टेल यू व्हाट डज 100% मीन. 100% का मीन है कि ओके, कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मी, लिसन टू मी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मी, और जो मेरे साथ हो रहा है, दैट इज, आई विल कॉल दैट इन टूडेज सेशन इवेंट, EVENT. एम आई क्लियर? उसको हम बोलेंगे इवेंट. तो जो मेरे साथ हो रहा है, अच्छा बहुत बुरा, बहुत स्ट्रगल, बहुत सारी, कोई स्ट्रगल नहीं है, दैट इज एन इवेंट विच इज हैपनिंग टू मी. तो हम सबको ये लगता है, मोस्ट ऑफ अस को ये लगता है कि जो हमारा आउटकम है, आउटकम मतलब जो उसका कंक्लूजन है,
जो आउटकम निकल के आ रहा है वो इवेंट पे डिपेंड करता है। आई गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, हम में से एक बच्चा बोलता है, यार लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दैट my relationship with my parents is not that good. For example, I'm just giving you hypothetical examples, teenager issues. Kya hai? My relationship with my parents is not that good. Okay, that's an event. Oh, that's an event. आउटकम क्या है? बिकॉज उसके वजह से सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, आई स्ट्रगल इन माई स्टडीज, I am not a good student. I want to be a good student, but I am not a good student because the events in my home, this event of not being able to gel up with my parents, they're not able to understand me, is the reason I'm not able to do well in life. Life means अभी के लिए जो हमारी इस एज में जो भी आपकी लाइफ है, 14-15 साल 16 साल जो भी आपकी एज है, उस हिसाब से जो भी आपकी लाइफ। ओके, नाउ इस बच्चे ने क्या सोचा, लिसन टू मी, इस बच्चे ने क्या लिखा इवेंट, कि उसके दिमाग में क्या इक्वेशन चल रही है मैथमेटिक्स की, इवेंट इज इक्वल टू द आउटकम। कि क्योंकि मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, अभी मैं एक दो दिन पहले मतलब obviously I'll not name anyone because a lot of students talk to me about everything and anything. So I was talking to one of the students. She says that a lot of issues and all that stuff, because of which I'm not able to do well. Now that's a very strong event. It's a very strong event. It could be a healthy. I'm not naming anyone and not sharing specific details also because of confidentiality issues. कि वो event बहुत strong और genuine problem है. And the outcome is that the kid is struggling. The kid is genuinely struggling. बिल्कुल ठीक है, absolutely right. The struggle is real because दिमाग में equation क्या है, E is equal to O. E stands for event, O stands for the outcome. Coming back to the same example जो मैंने बोला, वो बच्ची struggle कर रही है because उसके घर पे there is some issue which is constantly happening between the parents or the child and the parent, or the parent and the parent, parent and the grandparent, property issue, financial issue, could be anything. But the kid is missing, and we all miss that this is not the right equation. If you are carrying your pens, you can write it. Else I'll send you in your notes. मैंने already इस session के notes बना लिए हैं. The right equation जो आज से हमें याद रखनी है मेरे बच्चे, if you genuinely want to take out something from this session, is the right equation from today onwards is E for elephant, which is event, plus R for response, is equal to the outcome. R is the response. It is not the event which decides the outcome better. इवेंट से आउटकम्स नहीं बिल्ड होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रियल स्टोरी। 1996 में एक कैलिफोर्निया के पास, यूएस में कैलिफोर्निया जगह में वो आ गया था, भूकंप आ गया था बहुत सारा, एंड जिसकी वजह से जो मेन हाईवे था, मेन हाईवे जो कनेक्ट करता था, वो कोलैप्स कर गया था। रियल स्टोरी है, ठीक है, रियल इंसिडेंट है, सॉरी नॉट द स्टोरी, रियल इंसिडेंट। तो उससे पहले फ्लड्स भी आया था सेम जगह पे, उसके आसपास फ्लड आया था, आग भी लग गई थी जंगल में। तो बैक टू बैक कैलिफोर्निया में बहुत सारे टक 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 इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो क्या हुआ कि एक बहुत इस ये जो हाईवे का ब्रिज कोलैप्स कर गया, उसकी वजह से एक बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल जाम। 3-4 घंटे से लोग, गाड़ियां बस टक 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 टक, जस्ट दे वर वॉकिंग एट द स्नेल स्पीड। ओके, सो CNN is the world's biggest news channel, ठीक है, सुना होगा आपने। They were live reporting and they were talking, because सब कुछ बहुत slow move कर रहा था ट्रैफिक, तो their reporter was live talking to the people who were stuck in the jam for the longest period of time. Now she knocked one of the door. She knocked one of the door, and the जो बंदा ड्राइविंग सीट पे था, उसने उससे पूछा कि how do you feel about it? And he started yelling, obviously. What kind of a stupid question is that? How do you feel that I'm stuck in a jam? California sucks big time. पहले आग लगी थी, अब फिर आग लग गई, फिर पहले फ्लड आ गए, फिर आग लग गई, फिर ये भूचाल आ गया। I am always, no matter what time I start for my office, I'm definitely always going to be late. This city sucks big time. Was the response of the first person. She knocked one of another door. So another fellow who was on the driving seat was reading a book. गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठ के बुक पढ़ रहा था, because the traffic was stalled. उसने उससे पूछा कि how do you feel about this jam and this California?
So he said, this is a beautiful place. And my boss cannot ask anything more than this कि मैं जाम में फंसा हूँ. आई एम लिसनिंग टू द ऑडियो टेप्स टू. उस टाइम पे कैसेट्स भी चलती थी, आपने शायद देखी भी नहीं होंगी. ठीक है, सीडीज से पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो उस कैसेट वो आई एम लिसनिंग टू द ऑडियो टेप्स ऑफ लर्निंग स्पैनिश. आई वांट टू लर्न स्पैनिश. आई हैव सो मच टाइम इन द वर्ल्ड टू रीड गुड बुक्स ऑल्सो ऑन माई वे. आई एम लकी टू बी अलाइव. आई एम ब्लेस्ड टू बी अलाइव. इतने लोगों की जान चली गई फायर में, फ्लड्स में, इतने लोग घर से डिस्प्लेस हो गए. आई एम सिटिंग इन माई कार, माई एसी इज ऑन. मेरा बॉस शायद इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करेगा मुझसे कि मैं जहाँ में भी आई एम ट्राइंग टू अपग्रेड माई स्किल्स. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू लिव. सेम इवेंट, एब्सोल्यूट सेम इवेंट, पीपल लिविंग इन द सेम सिटी. इट्स अ ट्रू स्टोरी. आई थिंक आपको कहीं ना कहीं वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा. एब्सोल्यूट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज. That's the power of choosing the right response. That's absolute the power of choosing the right response. मैं मतलब जो बच्चों ने मुझे सुना हुआ है, सुना हुआ एज इन कभी बोलते हुए या गलती से मैं एक आधा बैच ले भी रहा हूँ, इस बार भी मजबूरी में ले रहा हूँ. ठीक है. सो सो वो प्रेशर बच्चों का बहुत, पेरेंट्स का भी बहुत है. ठीक है. सो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि हर इंसान के अंदर दो माइंडसेट होते हैं, या हर इंसान के अंदर दो इंसान होते हैं. हर इंसान के अंदर दो इंसान हैं. एक जिसको सबसे आसान ऑप्शन लगती है टू प्ले विक्टिम कार्ड. विक्टिम कार्ड का मतलब है कि यार, जो मैंने पहले भी बोला जहां से आज का सेशन स्टार्ट किया, मैंने से टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ. उसके बाद मैंने एक और चीज बोली थी, ये सबसे डिफिकल्ट है. उसका रीजन, डिफिकल्टी का रीजन समझो बच्चे. वाई इट इज डिफिकल्ट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट व्हेन वी आर नॉट टेकिंग 100% ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू ब्लेम समवन एल्स. when we have someone external हम किसी और को अगर ब्लेम कर सकते हैं, इससे आसान जिंदगी नहीं हो सकती. Because you see, then we have someone to put our blame on. It could be our parents, it could be, if I'm not good in subject, I'll say यार ये अच्छा नहीं पढ़ाता है, इसको पढ़ाना नहीं आता. और फॉर एग्जांपल ये टीचर स्कूल में मुझे मेरे साथ बायस्ड है, मुझे लोग बुली करते हैं. आई एम नॉट सेइंग ऑल दीज थिंग्स आर नॉट करेक्ट. आई एम नॉट सेइंग दैट. बट हमारा रिस्पॉन्स क्या है? हमारा रिस्पॉन्स होता है विक्टिम होने का. कि क्योंकि द मोमेंट आई पुट क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, इसलिए ये है, इसलिए मेरी स्ट्रगल है, इसलिए इस पॉइंट पे मैं स्ट्रगल करता हूं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक यू अबाउट माई लाइफ, आई एम अ बिगेस्ट सकर ऑफ नॉट गोइंग टू जिम रेगुलरली. ठीक है. एवरी 6 months आई पे अ 6 month फी. Honestly speaking, I go for 15 consecutive days. I do a strong workout, and somewhere down the line, I then stop going. And then I give excuse to my family. They always tell me, "Go, you should go and run because your work is so stressed out. Go and run, go and lift weights and all." Because my wife is क्वाइट फिटनेस फ्रीक, तो मुझे बोलती है कि जा साले घर बैठ रहा है, मतलब रात को जाया कर, 9 से 10 जाया कर. तो मैं जाता हूँ, मैं गया. बट एवरी 15-20 days आई कम अप विद एन एक्सक्यूज, यार बहुत काम का स्ट्रेस है, मेरे से जिम में वर्कआउट नहीं होगा, दिस इज एडमिशन पीरियड, बहुत बैंड बजा हुआ है, एंड ऑल दैट स्टफ. So there is a victim mindset which I always play when I come to when it comes to going to gym every single day or consistently. अभी भी ये हुआ, 2 हफ्ते में गया, उसके बाद अब मैं 2 हफ्ते से नहीं गया. So again I have an excuse ready here. नहीं यार अभी करूंगा, मतलब आई स्टार्ट फ्रॉम 1st of May, नया मंथ, नई शुरुआत एंड ऑल दैट क्रैप. या हर सैटरडे सोचता हूँ या संडे सोचता हूँ कल से पक्का. और अगर काम में कोई चीज स्ट्रेस्ड आउट हो जाए, ऑफिस से लेट आ जाओ, तो देयर इज एन एक्सक्यूज रेडी. आई डोंट डिजर्व टू गो जिम टुडे, आई हैव टू ईट बिकॉज आज मैंने बहुत काम किया. That's a victim mindset because the excuse is always ready. But the same me, when it comes to work, when it comes to my professional commitments, so I can work 7 days a week, 24 hours also. आप मुझे रात को 1 बजे भी मैसेज करोगे, अगर मैं जाग रहा हूँ, तो I'll be there to solve your problems. No excuses, absolutely not. It will never be. Simple. Everybody has two sides. Same as with all of us, all of you also.
आप में कुछ सिचुएशंस में आपने अपनी लाइफ में बिना एक्सक्यूजेस दिए बहुत चीजों को ओवरकम करके आप यहाँ तक पहुंचे हो, वॉट एवर इज योर एज, 14, 15, 16, 17, 50, वॉट एवर इज योर एज, अगर पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, आई नो फ्यू ऑफ द पेरेंट्स आल्सो लिसन टू मी। और कुछ चीजों में हमने एक्सक्यूजेस बनाए क्योंकि ये है। तो व्हेन आई से वी हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ्स, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मैक्सिमम चीजों में अगर हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर दें, मेरे बच्चे हर 100% में होनी मुश्किल है। आई हैव नॉट सीन समवन जो हर चीज में परफेक्ट है। मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि चांसेस बहुत कम है, हो सकते हैं, बट आई हैव नॉट मेट समवन इन माय लाइफ जो 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 हर चीज में परफेक्ट है। be it relationship, be it emotional relationship, be it finances, be it body, whatever it is, be it social life, होते होंगे आई एम श्योर, बट आई एम येट टू मीट समवन। सो अगर हम 90% चीजों में भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर देंगे, हम आई बिलीव दैट you will have an attitude of a winner here, and that is what is going to make a difference in you, in our lives. So next time when there is a situation attacking you, always ask yourself this question: मैं इस situation को कैसे respond कर रहा हूँ? ध्यान सुनना। Am I responding it with a champion mindset जो कहता है okay, it's a situation, I have to face it, I'll give my 100% effort in this, because I am responsible for my success, failure, struggle, whatever it is, I myself is responsible. Or I am using the victim mindset of saying that okay, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, या क्योंकि ये है मेरे साथ प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे को टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, या क्योंकि मुझे स्कूल में बच्चे प्यार नहीं करते, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को तंग किया, क्योंकि एक्स रीजन, क्योंकि मेरी आज तबीयत खराब है, इसलिए तो मैं ये करना जस्टिफाई करता हूँ, मतलब मेरा लैक ऑफ एफर्ट ऑन दिस थिंग इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ दिस। If that is going to happen, you're choosing a victim mindset. If other thing going to happen, even if whatever the results in future will be, you're building a champion mindset. इस एज में आपकी, अगर मुझे तुमसे पूछोगे ना कि यार, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ अगर मुझे किसी ने चीजें सिखाई होती इतने प्यार से पढ़ाई के अलावा, तो कहर मचा देता मैं, और कहर मचा देता। You will always, I'm being very 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 honest as a friend, I'm telling you, not as your teacher, just as a human being। हर सिचुएशन में 99% दोनों ऑप्शन होती है मेरे पास। choosing to be a victim, choosing to be a champion, choosing to be a victim, choosing to be a champion। हम बड़े होके क्या बनते हैं, बड़े होके, एज एन आई एम 37 नाउ, सो आप जब मेरी एज में हो जाओगे, जब अपने पेरेंट्स की एज में हो जाओगे, मैं उस दिन किसी बैच में बोल भी रहा था कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, हाँ मैं एक बैच में बोल रहा था उस दिन, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई ये नहीं कहता कि आपके घर बहुत नेगेटिव बच्चा पैदा हो, नर्स ये नहीं बोलती पेरेंट्स को कि आपके घर देखो बहुत नेगेटिव बच्चा पैदा हो गया। सोचो, इमेजिन करो नर्स ऐसे बोलते पेरेंट्स को, ये लो एक नेगेटिव बच्चा पैदा हो, तो इमेजिन वो हॉस्पिटल और नर्स का क्या हालत हो। ऐसा कभी नहीं होता। We all are born almost with a similar kind of slate, blank slate। Obviously पिछले कर्म होते हैं, वो बहुत फिलोसफिकल बात हो जाएगी, वो किसी और दिन करेंगे, किसी और क्लास में करेंगे, क्लास ऑफ लाइफ किसी और एपिसोड में करेंगे, कर्मा का फंडा। बट हम ऑलमोस्ट सब ब्लैंक स्लेट पे आते हैं। हमारे अंदर दोनों लोग हैं। अब हमारे अंदर कौन सी पर्सनैलिटी डोमिनेट करेगी? जिस बंदे को हम ज्यादा फीड करेंगे अपने थॉट्स। कौन स्ट्रॉन्गर ग्रो करेगा? जिसको हम ज्यादा बॉर्नविटा पिलाएंगे। डोंट ड्रिंक बॉर्नविटा, इट्स नॉट अ गुड थिंग दो। जिसको हम स्ट्रॉन्गर चीज, जिसको हम ज्यादा फीड करेंगे। अगर मैं अपने अंदर विक्टिम को फीड कर रहा हूँ तो मैं बड़े होके बन जाऊंगा विक्टिम माइंडसेट का बंदा, कंप्लीटली पर्सनालिटी जिसकी यू विल सी सो मेनी adults around you in your families, extended families, neighbors, teachers, even some teachers in school, or could be at Genesis, I don't know, but I try that not hire such kind of people. So means cribbing mindset. And then suddenly you will also meet few people in your life, 10% people, if I, that you look up to। यार ठीक है, doesn't mean is very successful or not, but we मतलब this guy makes sense, this women make sense, it could be your chachi, bua, tai, fufi, mufi, whatever it is, it could be someone who is not related to your family but could be a teacher who impacts you greatly,
For a lot of us, a lot of you, it will be me, I'm sure. ठीक है. So it's all about what do you feed regularly inside from your this age. Trust me, you are living the bestest age of your life, and I'm telling you why. Because आप सब कुछ अभी बदल सकते हो. The best is yet to come. Because when you would be a little more grown up, you see how difficult it is to change your grandparents' mindset. It's next to impossible. अगर उनको आयोडेक्स चाहिए और आप उनको वॉलनी ला के दोगे, आई हैव माई ग्रैंड मदर लिस्टिंग टू मी राइट, शी रेडी फाइट. अगर उनको आयोडेक्स चाहिए क्योंकि वो 50-60 सालों से आयोडेक्स यूज करते हैं, एंड आई सजेस्ट इस बार बड़ी मम्मी इस बार वॉलनी चूज करो, वॉलनी. आई डोंट गिव अ शिट टू वॉलनी, शी सेज दिस इन हिंदी. आई वुड यूज आयोडेक्स बिकॉज दैट्स अ फिक्स माइंडसेट. सो अगर मैं कोशिश भी करूंगा तो वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होगी. बिकॉज मैं ला के भी दे दूंगा, वो लगाएंगे नहीं. मम्मा से फिर वाइडेक्स ही मंगवा के वही लगाएंगे. बिकॉज एट दैट एज वॉट एवर बिलीफ सिस्टम वी हैव, वॉट एवर थॉट्स, वो इतने पक्के हो चुके होते हैं, जिसको आज की डेट में हम लोग बड़े कूलली बोलते हैं, सर आई हैव अ जनरेशनल गैप विद माई फादर. वो होगा ना, होगा. बिकॉज एट 15-16 years एज यू गाइस आर फ्लेक्सिबल. दुनिया देख रहे हो, दुनिया देखोगे. At probably 45, 50, they have seen a lot of world. They'll see a lot more, but they'll see a lot of world more than you. So they will always, we always have. I'm at 37 also. I also will, because why? Probably since I'm into this profession where I meet every day new kids, har saal thought process change, so we have been able to evolve ourselves. So you have to feed the right Rakshas in you. One, a champion Rakshas, or the Rakshas, I'm saying it because anybody that, because they can grow into a huge human being inside you, and that we call it as your personality. इंसान की पर्सनालिटी क्या है? उसके थॉट्स हैं. लिसन टू मी अबाउट दिस. इंसान की पर्सनालिटी क्या है? उसके थॉट्स हैं. थॉट्स कैसे बनते हैं? उसके आसपास के एनवायरमेंट से बनते हैं. उसके आसपास के कंजम्पशन से बनते हैं. मैं इस पे सारा दिन क्या देखता हूँ, मैं कैसी बुक्स पढ़ता हूँ, मैं कैसे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, वो मेरे थॉट्स बनते हैं. ध्यान सुनना, थॉट से इमेजेस क्रिएट होती हैं, इमेजेस से फ्यूचर बिल्ड होता है. बुरा अच्छा कुछ भी. इट्स अ बेसिक लॉ, जिसको थॉट बिकम थिंग्स बोल देते हैं. अगर हम फिलोसफी की भाषा में बोले, थॉट बिकम थिंग्स. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद बच्चा. द वर्स्ट पार्ट अबाउट लाइफ, टेल यू, कैन आई टेल यू द वर्स्ट पार्ट अबाउट लाइफ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अच्छे इंसान हो, आप बुरे इंसान हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो. अगर मैं, अब हम आज 50 लोगों के आसपास हैं इस सेशन में, अगर हम सब एक बिल्डिंग के पे खड़े होके जंप करेंगे तो सब नीचे गिरेंगे. ग्रेविटी विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन तन्वी बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग और साहिल बीइंग अ बैड ह्यूमन बीइंग. थिंक अबाउट इट. ग्रेविटी डज ग्रेविटी डिस्टिंग्विश? डू यू चैलेंज ग्रेविटी? यार ये क्या सर, वो इतना गंदा आदमी था, उसको भी चोट लग गई, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं बंक भी नहीं करता, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ, तो मेरे को भी चोट लग गई, क्या फर्क हुआ मेरा अच्छा आदमी बनने का? ये ग्रेविटी है. वैसी लॉ ऑफ लाइफ है. You might be the best of the human being if you're not reflecting the thinking right thoughts, because of your environment around you, mahal around you, we are bound to struggle. That's called attitude, which we call it the attitude. It's a student interactive session. It's not a PTM, ma'am. This is a student session. मैंने कहा था ना, पेरेंट्स भी सुन रहे हैं. So are you getting what I'm trying to say? Are you getting what I'm trying to say? Coming back, इक्वेशन क्या चेंज करनी है? इवेंट प्लस रिस्पॉन्स. किसका रिस्पॉन्स? पेरेंट्स का कि तुम्हारा, कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का? ओन रिस्पॉन्स इज योर आउटकम्स. हम लोग कहां फोकस करते हैं? ई पे. फोकस का करना है आर पे. अपने आप क्या चेंज हो जाएगा? ओ. योर रिस्पॉन्सेज इज योर आउटकम.
And how do you change your thoughts? Read good books. मैं हमेशा बोलता हूँ the fastest way to build, मतलब ये मेरा personal experience रहा है, the fastest way to expand your horizons is to read great books. I'll suggest you few in the next. I'll send you the 4 5 books के नाम so that which you can start reading at this age. Be among the right kind of people. Choose your friends, because you can't choose your parents. You can't choose your chachu, mamu, tau, fufu, chachi, mami, tai, whatever it is. No comments personal, but you can choose your friends very, very carefully. Absolutely, it's critical to choose your friends carefully. मैं सबको बहुत बोलता हूँ ये बात. Choose what do we say, what kind of things you consume on social media. That's absolutely critical. It's a great thing, but इस पे filterless information आती है, कुछ बहुत अच्छी, कुछ बहुत गंदी, कुछ absolutely toxic, कुछ absolutely crazily toxic, कुछ absolutely crazily motivating. You have to choose it. अभी no personal help बेटा. I'm so sorry. This is a joint session. We'll help you personally later. आप मेरा नंबर लेके बात कर लेना मुझसे. So, guys, we'll rejoin on another link, and you'll get another link in the next 5 minutes. You can rejoin. We'll have 10 more sessions, a 10-minute session pending. We'll continue on the other side of the link. You'll get the link and join in the next 5 minutes. See you on the other side.